The topic is for today lecture is Thomas method or Gauss-Thomas method to solve triangular tridiagonal system. ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम को ट्राइगोनल सिस्टम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, नेम्ड एज गॉस थॉमस मेथड. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ट्राइडायगोनल system? First of all, we try to understand what is tridiagonal system. The example is two x1 minus x2 is equal to 1, minus x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 6, minus sorry minus x2 plus 2 by 3 x3 minus x4 is equal to minus 4 by 3, minus x4 plus 2x5 minus x6 is equal to 0, minus x3 plus 2 by 3 x3 minus x5 is equal to 0, and at last minus x5 plus 2x6 is equal to 0. ठीक है, we have 6 equations. This type of equations is called the system is called the tridiagonal system. ठीक है, तो basically no need to worry in exam. The question comes like that: solve tridiagonal system by Gauss-Thomas method. Okay, what is specialty in this? You can see in this equation only three variables, x1 x2 x3 is not there. This equation is also three variables. So like this, in this equation we do not have x1, we do not have x2, in this equation we do not have x3, and so on. Okay, क्वेश्चन में और क्लियर होगा. First of all, I define the rule. Rule is some absurd algorithm. What is algorithm? For Thomas method, which we are going to follow. This will be step 1. For first equation, we find a1 and r1 by a1 is equal to a1 by d1 and r1 is equal to r1 by d1. नेक्स्ट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? फॉर सेकेंड टू n-1 equations, we find ai and ri.
by AI is equal to AI upon DI minus BI AI minus 1, and RI is equal to Ri minus Bi Ri minus 1 upon Di माइनस Bi। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 में फॉर लास्ट इक्वेशन वी फाइंड Rn by formula Rn is equal to Rn minus Bn Rn minus 1 upon Dn minus Bn An minus। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4 में हम क्या करते हैं? स्टेप 4 में सॉल्व बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, जो अब तक आप लोग करते हैं। क्या होगा? एक्स एन इज इक्वल टू हो जाएगा आर एन, यू विल गेट योर वैल्यू, एंड एक्स आई इज इक्वल टू आर आई माइनस ए आई एक्स आई माइनस 1, आई प्लस 1, where I is equal to n minus 1, n minus 2 and so on up to 2 and 1। ठीक है। तो इस स्लाइड की एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, ताकि आप लोग समझ सकें, आपके पास ये पेज रहे। ठीक है, हम इसको आगे करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये आपके पास आपने क्लिक कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन में गॉस थॉमस मेथड या फिर थॉमस मेथड, एंड व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन diagonal d is equal to 2 4 3 5 above diagonal a is given to you 2 4 3 0, below diagonal b is given to you 0 2 1 2, and right hand side r is given to you 4 6 7 10। ठीक है, यहाँ से आपको ये क्लियर पता चल गया होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ d1, this is the value of d2, okay, this is the value of d3, this is d4। Similarly, this is a1 a2 a3 a4, b1 b2 b3 b4, r1 r2 r3 r4। Now we are going to solve this question by Thomas method। तो उसमें हमारे पास क्या था? स्टेप 1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फॉर फर्स्ट इक्वेशन we will find out a1 is equal to, what is the formula? a1 upon d1। रख दो वैल्यू क्वेश्चन से, a1 है 2, d1 is 2, this is equal to 1, and r1 is equal to r1 upon d1। what is the value of r1? 4, d1 value 2, so this is equal to 2। step 1 is complete। step 2, ठीक है। तो अब हमें स्टेप 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2 से n-1 इक्वेशन तक लिखना था। यहाँ कितनी इक्वेशन है हमारे पास? r1 r2 r3 r4, 4 इक्वेशन है। तो दैट मीन्स
स्टेप 2 में दो इक्वेशंस होंगे, हमें क्या निकालना होगा, A2 और R2 एंड A3 एंड R3। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फॉर सेकेंड इक्वेशन we will calculate A2. What is the formula of A2? A is formula is I की जगह क्या रख देंगे, 2, A2 D2 minus B2 A1. So after putting the value here, this will be 4 minus 2 into 1. This will be 2. Okay. Similarly हम लोग यहाँ से निकालेंगे R2. What is it? I की जगह क्या रख देंगे हम, 2 इन जो आपके पास पिक्चर क्लिक है उसमें। तो क्या बन जाएगा, R2 माइनस B2 R1 अपॉन D2 माइनस B2 A1। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 2 इंटू 1। तो दिस विल भी इक्वल टू 1 आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, स्टेप 2 में ही हम क्या करेंगे, फॉर थर्ड इक्वेशन हम क्या निकालेंगे, A3 और R3। A3 इज इक्वल टू A3 upon D3 minus B3 A2. This will be 3. 3 minus 1 into 2 is equal to 3. We will get R3 by the formula. This will be R3 minus B3 R2 upon D3 minus B3 A2। वैल्यू रख दीजिए, 7 इंटू 1 इंटू 1, 7 माइनस 1 इंटू 1, 3 माइनस 1 इंटू 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या करते थे हम, स्टेप 3 फॉर लास्ट इक्वेशन। लास्ट मतलब यहाँ पर कौन सी हो गई, फोर्थ इक्वेशन। वी कैलकुलेट R4 ओनली, नॉट A4। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R4? R4 माइनस B4 R3 अपॉन D4 minus B4 A3. This will be 10 minus 2 into 6, 5 minus 2 into 3. After calculation, this will come 2. Now, step 4. उसमें हम क्या करेंगे, by back substitution। ठीक है, ट्यूशन। तो बैक सब्सटीट्यूशन में भी फॉर्मूला था, क्या था हमारे पास, x4 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 2। ये एक आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या था, एक्स आई इज इक्वल टू आर आई माइनस ए आई एक्स आई प्लस 1। तो एक्स आई की जगह 3 रख देंगे, तो इस हो जाएगा x3 इज इक्वल टू R3 माइनस A3 x4 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा x3 आ गया। फिर इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, x2। x2 इज इक्वल टू R2 माइनस A2 x3 is equal to 1 minus 2 into 0 is equal to 1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, x1 is equal to R1 minus A1 x2 is equal to 2 minus 1 into 1 is equal to 1। तो इस तरह हमारा x1 1 आ गया, x2 2 आ गया, x3 आपका कितना है 0 और x4 वैल्यू आ गई 2। दिस इज योर आंसर। तो इसको अब अच्छी तरीके से समझें, एक एक स्टेप्स को। कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, जल्दी कुछ नहीं है, आराम से समझिए। जस्ट फॉर्मूले हमने अप्लाई करे हैं, कुछ नहीं किया इसमें।
जी बताइए। सांची। हाँ मतलब स्टेप टू समझ नहीं आया। ठीक है, स्टेप टू आपके पास जो मैंने रूल बताए थे, आप उसमें एक बार चेक कीजिए। वो फोटो है ना आपके पास? देखिए उसमें लिखा हुआ है फॉर ईच इक्वेशन फ्रॉम आई इक्वल टू 2 to n-1। उसका मतलब क्या है, सेकेंड इक्वेशन से लास्ट इक्वेशन से पहली इक्वेशन तक। ठीक है। ठीक है, तो अब हमें सेकेंड इक्वेशन से लिखना है, यानी आई इक्वल टू अगर हम 2 लिखेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है ए आई इज इक्वल टू ए आई अपॉन डी आई माइनस बी आई ए आई माइनस वन, यही है। ठीक है, इसमें आई की जगह आप 2 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए टू इज इक्वल टू ए टू अपॉन डी टू माइनस बी टू ए वन, ये आएगा आई की जगह 2 रखने पर। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ओके, वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब ए टू की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, ये रही 4 है, वो हमने यहाँ लिख दी। डी टू की वैल्यू देखिए क्या है, 4 है, वो यहाँ पर लिख दी हमने। फिर उसके बाद बी टू ए वन, बी टू की वैल्यू क्या है, ये रही। और ए वन की वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख के कैलकुलेट करके ये ट्रू वैल्यू है। क्लियर। इसी तरीके से हमने आर टू निकाल लिया। इसी तरीके से सेम आर ए थ्री और आर थ्री। और बताइए, अब क्लियर है पूरा क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए ठीक है, आप इसको समझिएगा एक बार और वीडियो देखिएगा अगर मान लो कुछ डाउट आता है तो। और अब एक्चुअली ये तो मैंने आपको बता दिया बाय द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन इट, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या कैलकुलेशन हो रही है, उसको अगर हम फिजिकली समझना चाहें तो देखिए कैसे समझेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड। क्या है क्वेश्चन, 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 6, x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 7, 2x3 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन, इसे आपको सॉल्व करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है, व्हाट इज द मेथड, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स x1 x2 x3 x4 की वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड। तो वही उसी इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। यहाँ पर इस केस में d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 का कोफिशिएंट, d2 आपका d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा x1 का कोफिशिएंट 2, और दूसरी इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट 4, थर्ड इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट 3, एंड फोर्थ इक्वेशन में x4 का कोफिशिएंट दैट मीन 5। ए क्या हो गया, इस डायगोनल से ऊपर वाला। ठीक है, या इसको आप और मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊं तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x1 के x2 x3 एंड x4, तो ये हो जाएगा 2 2 0 0 2 4 4 0 1 3 सॉरी 0 1 3 3
0 0 2 5. दिस इज x1 x2 x3 x4. इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4 6 7 10. ठीक, तो यहाँ पर अगर हम डी करना चाहें तो डी क्या होता है आपका डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वाले, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. तो दिस विल बी 2 4 3 5. ए क्या होता है? अबाउ द डायगोनल. अबाउ से तो उसमें क्या हो गया 0 2 4 3. बी क्या है? बिलो द डायगोनल, दैट इज 2 1 2 0. और ठीक है, और क्या था आपके पास इसमें? आर. आर क्या था? राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है? 4 6 7 10. तो आप इसको प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हो जो हमने अभी सीखा, लेकिन हम इसे अब दूसरे में तरीके से. ठीक है, तो दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को. दैट मीन्स सपोज इसको मैं इक्वेशन, ये यहाँ पर पता नहीं, ये काम नहीं कर रहा. मैं दोबारा से खोलता हूँ. ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी 2x1 + 2x2 = 4. वी डिवाइड करते हैं पहली इक्वेशन को बाई 2. तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बन जाता है? x1 + x2 = 2, 2x1 + 4x2 + 4x3 = 6, x2 + 3x3 + 3x4 = 7, 2x3 + 5x4 = 10. ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है. पहला स्टेप क्या करना है आपको? जो पहली इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है. फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में जो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 है, यू विल एलिमिनेट x1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से कैसे करेंगे एलिमिनेट हम? 2 - 2 × 1. तो इससे हम करेंगे तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन जाता है? x1 + x2 = 2, 2x2 + 4x3 = 2, x2 + 3x3 + 3x4 = 7, 3x3 + 5x4 = 10. ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है. सपोज इसे मैंने 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश बोल दिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होता है? अगेन पहले हमने क्या किया था? पहला स्टेप, पहली इक्वेशन का एक्स. हाँ 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 2x3. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू. वो लिखने में गलती हो. बिल्कुल सही. तो हमने पहला स्टेप क्या लिया था? इक्वेशन नंबर 1 में x1 के कोफिशिएंट को 1 बनाया था. नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन नंबर 2 से x1 को एलिमिनेट किया था. अब यही दो स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे. वो था इक्वेशन नंबर 1 के से. अब इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे हम? 2 डैश इक्वेशन के में x2 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे और 3 डैश से x2 को रिमूव करेंगे. नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अब?
by 1/2 into equation number 2 dash। तो जैसे हम इसमें ये करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 7, 2x3 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 10। सपोज मैं इसे 5, 6, 7 एंड 8 कह देता हूँ। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर 7 से x2 को रिमूव करना, ठीक है ना। तो वो कैसे करेंगे हम, बाई 7 माइनस 6। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल जाती है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, और यह आ जाएगी x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 6 एंड 2x3 प्लस 5x4 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर में 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड इसको बोल देता हूँ 8 डैश, ठीक है। वही हमने रिपीट किया। अब सेम प्रोसीजर हम थर्ड इक्वेशन के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पर कौन सी बन गई है, 7 डैश, 7 डैश इक्वेशन, ठीक है। 7 डैश इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x3 का कोफिशिएंट को पकड़ेंगे, इसके कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे और फिर 8 डैश इक्वेशन से x3 को रिमूव करेंगे, क्योंकि 7 डैश इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप हमारा छूट गया। अब 8 डैश इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x3 को रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं वही करने, आप इसको क्लिक करना चाहें तो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में वो अब उस वाले इक्वेशन से मैंने लास्ट इक्वेशन से x3 को रिमूव किया, देन फाइनली मेरे पास जो सिस्टम आ गया वो आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, x3 प्लस 3x4 इज इक्वल टू 6, माइनस x4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक। इसको मैं कुछ इक्वेशंस मान लेता हूँ, जो भी आप मानना चाहें। सपोज मैं भूल गया पहले कितनी थी, अब इसको 11, 12, 13 एंड 14 मान लें, 8 तक की कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, 9, 10, 11 एंड 12। तो ऐसा करने के बाद हम अब लगाएंगे बाई बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, बाई 12, हमारे पास आ गया x4 इज इक्वल टू 2, बाई 11 हमारे पास आ जाता है x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x4, आफ्टर कैलकुलेशन दिस विल कम 0, बाई 10 x2 is equal to 1 minus 2x3 is equal to 1 minus 0 is equal to 1, and x1 is equal to 2 minus x2 is equal to 2 minus the value of x2 is 1 is equal to 1। तो आपके पास आ गया x1 is equal to 1, x2 is equal to 1, x3 is equal to 0, x4 is equal to 2। दिस इज योर, ठीक है। ये हमने जो अभी किया है ये सब वही है जो हमने वो इससे पहले क्वेश्चन किया था, ए बी आर और डी, जिसमें हमने एल्गोरिथम का यूज़ किया था, ठीक है। वो और ये प्रोसीजर सेम है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। यस, बिल्कुल डेफिनेटली।
क्योंकि मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप वो वाला मेथड यूज़ करें, बिकॉज इसमें लॉट्स ऑफ टाइम लगे। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और पूछिए। एक बार पढ़ के देखिए, कोई 2 मिनट के लिए कोई डाउट आता है तो पूछिए। तो क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो अब तक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करते थे वो कैसे होते थे। a1 x1 a2 x2 a3 x3 इज इक्वल टू b a1 a, या यहाँ पर आप मान लो d1, कुछ भी इस तरीके से b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 इज इक्वल टू d2, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इज इक्वल टू d3। इस तरीके की इक्वेशंस को आप लोग पहले सॉल्व करें। अब आप किस किस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। ट्राई डायगोनल सिस्टम में कैसा होता है? ट्राई डायगोनल सिस्टम वो ऐसा होता है, अगर मैं तीन ही वेरिएबल पे कहूँ तो d1 x1 प्लस a1 x2 प्लस, नहीं प्लस नहीं, इक्वल टू r1, फिर है b2 x1 प्लस d2 x2 प्लस a2 x3 इज इक्वल टू r2। नेक्स्ट है b3 x2 b3 x2 प्लस d3 x3 इज इक्वल टू r3। तो ये इस तरीके से है, जिसमें पहली इक्वेशन में क्या है, इसमें स्पेशल बात, पहली इक्वेशन में यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट नहीं है, दूसरी इक्वेशन में तीनों वेरिएबल, और थर्ड इक्वेशन में आपके पास x1 का कोफिशिएंट नहीं है, x1 वेरिएबल ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को, अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d1 a1 0 b2 d2 a2 b3 d3 एंड, सॉरी यहाँ जीरो आएगा, जीरो यहाँ पर आएगा b3 और यहाँ पर आएगा d3। तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं ट्राई डायगोनल सिस्टम। ट्राई डायगोनल से मतलब क्या होता है, दिस इज डायगोनल वन, वन डायगोनल, दिस इज सेकेंड डायगोनल और दिस इज थर्ड डायगोनल। यानी कि इसमें तीन डायगोनल्स होंगे सिर्फ और बाकी सब जीरो होगा। जैसे सपोज करो हम 4 बाई 4 का मैट्रिक्स लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, d1 d2 d3 d4, एक डायगोनल तो ये हो गया। दूसरा डायगोनल क्या होगा, a1 a2 a3, और थर्ड डायगोनल क्या होगा आपका, b2 b, ये होगा b2, इसमें b2 b3 और b4, बाकी सब जगह क्या होगा, जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, जीरो जीरो जीरो।
ओनली 3 डायगोनल ही इसमें हो, 3 लाइनें, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे ट्राई डायगोनल सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? ट्राई डायगोनल सिस्टम किसे बोलते हैं? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज क्वेश्चन पूछें। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और ट्रिक है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन वही है, सॉल्व बाय जॉर्डन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है? 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, माइनस x2 प्लस 2/3 x3 माइनस x4 इज इक्वल टू माइनस 4/3, माइनस x3 प्लस 2x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 0, माइनस x4 प्लस 2x5 माइनस x6 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x5 प्लस 2x6 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर क्वेश्चन, जिसे हमें जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना। द मीनिंग ऑफ सॉल्व इज, we have to find out the value of x1, x2, x3, x4, x5, x6. So what is the rule in Jordan method? The rule is, suppose मैं इसको इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कहता हूँ, तो वही रूल है। इक्वेशन नंबर 1 में x1 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 से x1 को रिमूव करेंगे। सेम फिर इक्वेशन नंबर 2 में x2 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, x3 इक्वेशन 3 में से x2 को रिमूव करें। फिर से सेम वही, इक्वेशन नंबर 3 में x3 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 से x3 को रिमूव करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 4 में x4 को के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 से x4 को रिमूव करेंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, इक्वेशन नंबर 5 से x5 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे और इक्वेशन नंबर 6 से x5 को रिमूव करेंगे और देन बैक सब्स्टिट्यूशन। बट इन दिस क्वेश्चन, what is the trick in this question? Trick is we could not follow this procedure in this question. Why we do not could not follow and what is the solution for that? That I am going to explain you. तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 है उसमें इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x1 इसको हमने बनाया 1 एंड रिमूव x1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आ गया, हाँ जी, मेथड 2 नहीं, मेथड 2 जो मैंने आपको कराया था वो भी थॉमस मेथड ही है। आज सेकंड लेक्चर में मैंने जो दो आपको मेथड बताए हैं, दोनों के दोनों थॉमस मेथड हैं। एक है एल्गोरिथम की हेल्प से और दूसरा है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, दोनों सेम ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, और हम क्या कर रहे हैं इसमें आगे, मैं थोड़े से स्टेप्स छोड़ रहा हूँ। फिर इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x2 को हम 1 बना रहे हैं, 1 ऑफ इक्वेशन 2 एंड रिमूव कर रहे हैं x2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम रिमूव कर रहे हैं। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको मैंने एक स्टेप में ही यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं मेन कंसेप्ट इजीली समझा सकूँ। तो आफ्टर कैलकुलेशन आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स x1 minus 1/2 x2 is equal to
1/2, x2 minus 2/3 x3 is equal to 1/3, minus x4 is equal to -1, minus x3 plus 2x4 minus x5 is equal to 0, minus x4 plus 2x5 minus x6 is equal to 0, minus x5 plus 2x6 is equal to 1. Suppose this is 1 dash, this is 2 dash, this is 3 dash, this is 4 dash, this is 5 dash, and this is 6 dash. Now, what is our next procedure, next step? Anybody please tell me. हमने क्या किया इक्वेशन 1 में, कोफिशिएंट ऑफ x1 1 बनाया, 2 से x1 को रिमूव किया। फिर इक्वेशन नंबर 2 में x2 के कोफिशिएंट को 1 बनाया, 3 से x2 को रिमूव किया। अगला स्टेप क्या होता हमारा? इक्वेशन नंबर 3 में किसके कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे? बताओ। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x1 के कोफिशिएंट को 1 बनाया, इक्वेशन नंबर 2 में हमने x2 के कोफिशिएंट को 1 बनाया, इक्वेशन 3 में हम किसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे? x3 को, है ना? तो अब इक्वेशन नंबर 3 में हम x3 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, बट यहाँ ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3 मतलब 3 डैश, ओके, 3 मतलब 3 डैश। तो इक्वेशन नंबर 3 डैश में तो x3 है ही नहीं, फिर उसको आप 1 कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर आकर के हमारा प्रोसीजर अटक जाता है। तो वी गॉट स्टक हियर। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फॉर दिस वी विल स्किप दिस इक्वेशन। स्किप मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना छोड़ देंगे, लिखेंगे, बट इसके बाहर लिख देंगे हम स्किप। इक्वेशन नंबर 4 के बाहर हम लिख देंगे स्किप, यानी इस इक्वेशन को आगे हम प्रोसीजर में छोड़ देंगे। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 कोफिशिएंट है ही नहीं, x3 नहीं है तो कोफिशिएंट 1 छोड़ दो। फिर इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या करते थे? x3 को रिमूव करते थे, अब वो नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे हम नाउ, अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन नंबर 3 डैश है, ऐसे में अटकने के बाद इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आता है, क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 3 डैश है, इससे x4 इज इक्वल टू 1 हम इन बाकी बची हुई इक्वेशंस में, यानी कि 5 डैश और 6 डैश में रख देंगे। तो रखने के बाद हमारा जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा? दैट विल बी x1 minus 1/2, x2 is equal to 1/2, x2 minus 2/3, x3 is equal to 1/3, minus x4 is equal to -1, फिर माइनस x3 प्लस 2 x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बाहर हमने लिख दिया था स्किप, और फिर उसके बाद इसमें हमने x4 की वैल्यू रख दी थी, तो दिस इज 2x5 माइनस x6 इज इक्वल टू 1, माइनस x5 प्लस 2x6 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, 6 डबल डैश। ठीक है। अब अगला क्या था हमारा स्टेप? अब हमारा अगला इसके इसलिए हमने स्किप किया है क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 3 हमारी थी उसमें x3 का कोफिशिएंट नहीं था। इक्वेशन नंबर जो, तो जब x3 का कोफिशिएंट नहीं है तो इक्वेशन नंबर 4 से हम x3 को कैसे रिमूव करेंगे? कर सकते हैं? बताइए।
प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर ये था, इक्वेशन नंबर 3 में x3 के कोफिशिएंट को 1 बनाइए, फिर इक्वेशन नंबर 4 से x3 को रिमूव कीजिए। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में x3 का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 4 से x3 को रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस इक्वेशन के बाहर लिख दिया स्किप। ठीक है, हम स्किप नहीं करेंगे फाइनली, बस लिख दिया फिलहाल, फाइनली हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये क्या आपको बताया जा रहा है कि जॉर्डन मेथड जब आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर किस तरीके से कैलकुलेट करता है, वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, वो सीखा जा रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था हमारा? नेक्स्ट इक्वेशन था वही सेम चीज, इक्वेशन नंबर 5 से x5 का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और इक्वेशन नंबर 6 से x5 को रिमूव करेंगे। ठीक है, क्या मैं बता रहा हूँ, वही सेम प्रोसीजर। इक्वेशन नंबर 5 में x5 के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 6 से x5 को रिमूव करेंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या सिस्टम बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा x1 माइनस 1/2 x2 इज इक्वल टू 1/2, x2 माइनस 2/3 x3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस x4 इज इक्वल टू -1 माइनस x3 प्लस 2x4 माइनस x5 इज इक्वल टू 0, x5 माइनस 1/2 x6 इज इक्वल टू 1/2 एंड x6 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 6 तक 7 8 9 10 11 एंड 12 हमने माना। बस इसके बाद हम क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? बाई 12 x6 इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 11 x5 इज इक्वल टू आ गया 1/2 प्लस 1/2 x6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। देन इक्वेशन नंबर 10 से हमारे पास आ गया x3 इज इक्वल टू 2x4 माइनस x5, आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 1, 4 x4 x5 की वैल्यू आप जानते हैं, बाई 9 x4 इज इक्वल टू 1 बाई 8 x2 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 x3 इज इक्वल टू 1 बाई 7 x1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 x2 इज इक्वल टू 1। तो 10 इस प्रकार से आपके जो वैल्यूज आ गई वो आ गई, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 1, x4 is equal to 1, x5 is equal to 1 and x6 is also equal to 1. This is your answer by the थॉमस मेथड। ठीक है, अब आप लोग अपने डाउट